we will discuss our next topic, strong induction. Two examples are given as an homework for proof. Hope you have completed the proof. Today we will go for next topic. The title of the topic is strong induction. Let us try to understand strong induction with help of this example. Consider there is infinite ladder as shown in this diagram. Suppose we can reach the first and second rung of an infinite ladder. First and second rung of an infinite ladder. And we know that if we can reach a rung, then we can reach two rungs higher. Can we prove that if we can reach every rung using the principle of mathematical induction? What is given? Ladder is given, which is having infinite number of rungs, and the rule is given that if we can reach the first rung and second rung, then we can reach two rungs higher. For example, if this man is stepping on step 1 and step 2, then he can reach up to step 4. If he will reach to step K and K plus 1, then he can go for next 2 steps. So we want to prove that can we reach every rung using principle of mathematical induction? Let us recall mathematical induction. Mathematical induction says that if we can prove a basic step, then we can assume inductive hypothesis and we prove for next term. Let us see how we can prove this one. We have to write the solution. As usual, we will state that we are using principle of mathematical induction, and then we will write the basis step. The basis step holds because it verifies that we can reach the first rung. It is given that we can reach to first rung. Then we write inductive step. In the inductive step, we assume a inductive hypothesis. So our inductive hypothesis is that we can reach the kth rung of the ladder. Considering this inductive hypothesis, we must have to prove that we can reach K plus first rung. So we need to show that if we assume the inductive hypothesis for the positive integer K, then we should reach, or we can reach to the K plus 1 first. S मैम पीपीटी PPT दिसत नाहीये. पीपीटी तो दिख रही है. Okay. ये स्ट्रांग इंडेक्स की दिख रही है. This one? after this No, ma'am. सॉल्यूशन मैम दिख रहा है. सॉल्यूशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. दिख रहा है अभी? एक लाइन. यस मैम, एक लाइन लिखी. एक लाइन. yes ma'am ओके ओके. Yes, ma'am. एक लाइन है, एक ही लाइन है, अभी एक एक आ जाएगी. ओके मैम. Solution, we are specifying that we are using principle of mathematical induction. Then the basis step, in which we state that
It holds true because it verifies that we can reach the first rung. Then the inductive hypothesis, we assume that we can reach to kth rung of the ladder. And if we assume the inductive hypothesis for positive integer k, we want to show that we can reach the k plus first rung of the ladder. ओके अब कैसे शो करें इसको? हमारे पास क्या है कि अगर हम फर्स्ट रंग ऑफ लैडर रीच करते हैं तो हम सेकंड पर जाते हैं, सेकंड पर गए तो आगे के दो रंग्स पर हम रीच कर सकते हैं. हम वी कैन रीच टू द नेक्स्ट टू हायर रंग्स. अभी हमने एज्यूम किया कि हम लोग केथ रंग पर अगर जा सकते हैं तो k प्लस फर्स्ट रंग पर भी जा सकते हैं फॉर एनी आर्बिटरी k. कैसे शो करें? Normally in mathematical induction, we have seen proving summation formulas, proving inequalities, then divisibility test and checkerboard kind of examples. उसमें जब हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस दे देते हैं उसके बाद इंडक्टिव हाइपोथेसिस एज्यूम करने के बाद k प्लस वन नेक्स्ट टर्म के लिए हम कुछ तो भी जुगाड़ करके वो प्रूव कर देते. लेकिन अब ये कैसे? इनफाइनाइट लैडर है, लैडर चांद तक जा रही है और हम ये कैसे प्रूव करें कि अगर हम केथ रंग पर है तो k प्लस टू फर्स्ट पर चले जाएंगे. k कोई भी नंबर हो सकता है. There is no obvious way to complete this inductive step because we do not know from the given information that we can reach k plus first rung from the kth rung. जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में दी है उसमें से हमें पता नहीं चलता है कि हम k प्लस फर्स्ट रंग तक पहुंच सकते भी है या नहीं. जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीट नहीं है. After all, we only know that if we can reach a rung, we can reach the rung too higher. एक ही बात हमें पता है कि अगर हम एक स्टेप चढ़ते हैं तो आगे वाली स्टेप हम चढ़ सकते हैं. बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन से हम कोई भी प्रूफ नहीं लिख सकते. We failed. Isn't it? जितनी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में दी है उससे हम लोग ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम कोई भी kth आर्बिटरी और nth आर्बिटरी रंग को पहुंच सकते हैं. सो मैथमेटिकल इंडक्शन इस काइंड के एग्जाम्पल के लिए और प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं है. जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन और ऑर्डिनरी इंडक्शन का प्रिंसिपल हमने देखा है ये इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए सुटेबल नहीं है. तो इसके लिए सुटेबल क्या हो सकता है? तो ये है दूसरा प्रूफ. नाउ कंसीडर अ प्रूफ. नाउ हियर we will use the principle of strong induction. Instead of using ordinary induction or mathematical induction, let us try to write the proof using principle of strong induction. Strong induction में भी basis step है और strong induction में भी inductive step है, लेकिन थोड़ा difference है उसमें. तो बेसिस स्टेप जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन की है वैसी ही स्ट्रॉन्ग इंडक्शन की भी है. द बेसिस स्टेप्स होल्ड्स बिकॉज इट वेरीफाइज दैट वी कैन रीच द फर्स्ट रंग. इंडक्टिव हाइपोथेसिस में थोड़ा बदल हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा. तो इसमें यह है कि हाइपोथेसिस तो एज्यूम ही करना है तो हाइपोथेसिस भी सेम ही रहेगा. द इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट वी कैन रीच each of the first k rungs. अब यहाँ पर हमने ये फर्स्ट वर्ड डाला, फर्स्ट k rungs. अभी अगर आप पीछे जाते हो और डायग्राम में देखते हो
ये है डायग्राम, ये सारी रंग्स दी है, इसमें बहुत सारी रंग्स है। फर्स्ट के, इसका मतलब क्या? फर्स्ट 10, फर्स्ट 100, फर्स्ट 1000, फर्स्ट 1500। मतलब क्या? 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000 and 1 to 50. So first 10 rungs, first 100 rungs, first 1000 rungs, first 15 rungs. और अगर हमने बोला कि हम फर्स्ट के रंग्स पर चढ़ सकते हैं तो हम k+1 पर भी चढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या आ गया कि जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता था कि बेसिस स्टेप से शुरू करते थे और ये इसको यहीं पर छोड़ देते थे, उसके बाद k पर आते थे और k+1 प्रूव करते थे। तो ये जो है k+1 k पर डिपेंडेंट रहता था, 4 3 पर डिपेंडेंट रहेगा, 10 9 पर डिपेंडेंट रहेगा, मतलब प्रीवियस टर्म पर डिपेंडेंट रहेगा। अब इस 10 को सिर्फ 9 से लेना है, इसको 7 5 4 इससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ स्टेप 1 मतलब बेसिस स्टेप और उसकी प्रीवियस टर्म, उससे हम k+1 किया करते थे। अभी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में क्या हो गया कि हम लोग किसी को सिर्फ प्रीवियस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहले से कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट के टर्म्स। मतलब यहाँ से अगर जा रहे हो आप के तक तो सारी स्टेप्स आपको कंसिडर करनी है। अगर आप के तक फर्स्ट के स्टेप्स तक चढ़ गए तो k+1 पर भी आप जा सकते हैं। That is what a little bit difference between mathematical induction and the strong induction. The inductive hypothesis states that we can reach each of the first k rungs. We need to show that if we assume the inductive hypothesis is true, that is, if we can reach each of the first k rungs, then we can reach k plus first rung. We already know that we can reach second rung. We can say that as long as k is greater than or equals to 2, we can reach the k plus first rung from the k-1, k- first rung. And because we know we can climb 2 rungs from the rung we have already reached, and because k-1 is less than or equal to k, by inductive hypothesis we can reach k-first rung, and this completes the inductive step and finishes the proof by strong induction. अभी ये जो प्रूफ हमने देखा है एक जनरल प्रूफ था जिसमें हमें सिर्फ डिफरेंस दिखाना था मैथमेटिकल इंडक्शन और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है ये इस स्लाइड पर दिखाया है। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या था? बेसिस स्टेप में p(1) और बेसिस स्टेप को होल या ट्रू दिखाया जाता है और उसके बाद ऐसे लिखा था p(k) implies p(k+1). ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल था। अगर p(k) ट्रू है तो p(k+1) भी ट्रू है, और ऐसा अगर है हम दिखा सकते हैं तो we can say that this p is true for any arbitrary integer, positive integer m. ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का टेम्पलेट था। अब स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में क्या हो गया? To prove that p of n is true for all positive integers n, where p of n is a propositional function, we complete using 2 steps, basis step and inductive step. We verify the proposition p of n is true and we show that conditional statement. Here is the difference. This is p of 1, p of 2, p of k.
If all these are true, then P of k plus 1 is true for all positive integers. So here P of k depends upon all previous prepositions. If P of 1 is true, if P of 2 is true, if P of 3 is true, if P of k is true, then P of k plus 1 is true. P of k plus 1 depends upon combination of all these propositions. Hope you understand. Now we will see the example. Give the heading strong induction and write down this example in your notebook. Show that if n is an integer greater than 1, then n can be written as the product of primes. 1 hour. Show that if n is an integer greater than 1, then n can be written as the product of primes. Okay. ये एग्जाम्पल ऑब्वियस है कि स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के हेडिंग के अंदर दिया है तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि ये हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यूज करें कि मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करें। आगे का है एक मेथड, उसको वेल ऑर्डरिंग बोलते हैं, उससे भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहले डिसाइड करना है हमें कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करें कि स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से। उसके लिए ये जो प्रपोजिशन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि शो दैट इफ n इज एन इंटीजर, n कोई भी एक इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक n इक्वल्स टू say 25, then n can be written as product of primes. तो n के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। n के हमने फैक्टर्स निकाले तो हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये यहाँ 25 लिखते हैं और जो पहला नंबर है 2, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे वैल्यूज आएंगी और रिमाइंडर भी आएगा। ऐसे करते करते जाते हैं हम लोग और फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे? We write like reminder here, kind of things. Not here, we write it here. Then again 2 and so on. So what will be the factors here? पाँच से 3 5 अजून 25. 5 into 25 itself. 5 into 5, no? 5 into 5, 25. So here instead of 2, we have to take 5, and then it is 5 here, again 5, 1 here, and the factors are 5, 5, 1, 5. and 1. 1 is common to all, so we write 5 and 5 here. Is this number prime? Yes, ma'am. No. The Yes, ma'am. product of primes. This is product of primes. Yes, ma'am. Okay. Can you tell me any number? Any number
that we want to factorize, and that will not result into product of primes. कोई भी number ले लो. 30. 30. Okay. 30 के factors कैसे आएंगे फिर? 3. 2 5. 2 into 3 into 5. 5. 2 into 3 into 5. आवाज आ रही मैम. 2 into 3 into 5. All these factors are primes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कोई भी एक नंबर बताओ ना आप जिसका जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नहीं होंगे. ढूंढ के देखो मिलता है कि एक आध नंबर. 11. Which one? 11. 11. क्या फैक्टर्स आएंगे 11 के? 11 into 11 into 1. 1 तो सब में है, तो ये भी दोनों प्राइम्स है. Ma'am, 8. 8. Tell the factors. 2 into 2 into 2. 2. 2 into 2. All these are primes. Any other Ma'am. 1. 16 मैम. greater than 1? Greater than 1. मैम 16. 16. मैम नहीं है. 16 पर 9. 16. 4. हॅलो Yes. मॅम. हाँ मॅम प्राईम नंबर्स येणार सगळे म्हणजे फॅक्टर जे आहे ते सगळे प्राईमच येणार. कोणता Yes. नंबर नाही आहे टीचर तर नाही आहे कोणता. Okay, that means you believe that. हम्म. You believe that any integer, if it is greater than 1, can be written as product of primes. प्राईम्स लिहू शकतो. Okay, so therefore now try to solve this. Now in the all examples we have seen that it is kind of 5 into 5 into 1, and which is 25, or 30 which is 2 into 3 into 5 into 1. So these factors, suppose we consider this as first term, this is second term, this is third term. First term, second term, third term, fourth term. Can we consider only these two terms and ignore these two terms to take the product? जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में करते थे, k और k plus 1 कंसिडर किया और बाकी नहीं भी कंसिडर किया तो चलता है. ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? No, ma'am. नो. नहीं कर सकते. इसका मतलब ये जो है ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है. सो ये एग्जांपल किसका हुआ? स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का एग्जांपल हुआ है. So let us try to solve it. We have to follow the same steps. We have to write the solution, and in the solution first we have to write we are using strong induction for this. So therefore we will try to write like this. Proof by induction on N. We can specify strong induction on N also here. Proof by strong induction on N. And then we have to write the basis step. Now basis step, what is proposition here? Let P of N be the proposition that
if n is an integer greater than 1, then n can be written as the product of primes. This is our proposition. Now we have to write the basis step. We know that basis step tells you P of 1, P of 2, something like that. So what will be the basis step in this case? जो फर्स्ट प्राइम नंबर है उसको कंसीडर करना पड़ेगा. तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 2. 2. So One. is this statement greater than 1 लिखा है ऊपर पर हमारे proposition में. So can we say that this proposition is true for 2? Yes, ma'am. Okay, so we have Yes, to write ma'am. it Yes, like ma'am. this. We have to write it like this. 2 can be written as the product of a single prime number that is 2, and hence the basis step is true. ये जो 2 है ये 2 into 1 या सिंगल प्राइम नंबर 2 का प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये प्रोपोजिशन 2 के लिए ट्रू है. और अभी हम जाएंगे इंडक्टिव स्टेप के लिए. Here we will write inductive step. So इंडक्टिव स्टेप में हमें एज्यूम करना है. क्या एज्यूम करना है कि k के लिए, तो सिर्फ k के लिए एज्यूम करके नहीं होगा, तो हमें कहां से एज्यूम करना पड़ेगा? 2 का तो हमने दिखा दिया कि 2 के लिए ये प्रोपोजिशन ट्रू है. तो 2 से लेकर k तक जो भी नंबर्स हैं इनके लिए ये प्रोपोजिशन ट्रू है, ऐसा हमें मेंशन करना पड़ेगा. सो हाउ वी विल राइट इट? Suppose that every integer between 2 and k can be written as product of 1 or more primes. ये हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है कि 2 से लेकर k तक जितने भी नंबर्स हैं ये नंबर्स हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 और मोर प्राइम्स. और शो क्या करना है? कैन यू सजेस्ट क्या शो करना है? Yes. If n is integer greater than 1. What? ओके. समजलं नाही मला, परत बोलते का? No, ma'am, मला confusion आहे. ठीक है. Normally what we do, we start with basic step,
We assume inductive hypothesis K and we prove for K plus 1. Same thing is here. Suppose that every integer between 2 and K can be written as product of one or more primes. We must show that K plus 1 can be written as product of primes. Isn't it? So what we have to show? We must have to show that K plus 1 can be written as a product of primes. Agree? Do Yes, you ma'am. understand up to this? Yes, ma'am. ये तो हमारा टेम्पलेट था. पहले हम बोलते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रोपोजिशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम बेसिस स्टेप लिखते हैं, उसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप में एज्यूम करते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस और फिर बोलते हैं कि हमें K plus 1 के लिए ये प्रोपोजिशन प्रूव करना है. अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो ये जो K plus 1 नंबर है, ये K plus 1 कोई भी नंबर है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक तो ये प्राइम नंबर होगा, जैसे हमने एग्जांपल्स लिए उनमें आप में से किसी ने 11 बोला था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो भी n कंसीडर कर रहे हैं वो प्राइम है खुद. और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो n है ये कोई भी नंबर है, सपोज 30. अब अगर ये प्राइम नहीं है तो इसको कंपोजिट बोला जाता है. तो ये जो हमारा K plus 1 आने वाला है, K plus 1, ये आइदर प्राइम होगा या कंपोजिट होगा. ओके, तो अगर ये प्राइम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर इज रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ वन प्राइम इटसेल्फ. अगर ये कंपोजिट है तो ये कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और मोर नंबर्स, मोर इंटीजर्स विल बी रिटर्न. एंड हमें शो करना है कि ये जो टू नंबर्स है या मोर इंटीजर्स है ये प्राइम है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ केस 1. केस 1, let's use different color. Case 1, and first case says that K plus 1 is prime. If it is prime, then we know that it is the product of one prime. That is itself. Now second case, that is K plus 1 is composite. If this is composite, then K plus 1 can be written as product of any arbitrary integers like A and B. Then we will write like, then K plus 1 can be written as A, B. A, B means A into B, where we have to specify about A and B. What are they?
So where A and B are integers. अब ये जो integers हैं इनकी वैल्यू के बारे में हमें कुछ बताना पड़ेगा, जैसे कि ये A और B है, इनकी जो वैल्यूज आएंगी, let us write on the side using the red pen. K plus 1 हम ऐसे लिख रहे हैं A into B. अब ये की जो वैल्यू है और B की जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू इंटीजर्स है हमारे. सपोज कहाँ से शुरू किया है हमने, 1 से शुरू किया है और कहाँ तक जाएगी, A की वैल्यू कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 K कुछ भी हो, तो A की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, मतलब मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है. आर यू गेटिंग क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Minimum K plus 1 हो सकता है और maximum K plus 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, K भी हो सकता है. K plus 1 हो सकता है क्या? नहीं. Yes, ma'am. हो सकता है. Yes, ma'am. हो सकता है. यस मैम. K plus 1 भी हो सकता है. नहीं मैम, Yes, ये ma'am. नहीं हो सकता. नहीं मैम. K plus 1 क्यों नहीं हो सकता? ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल. हम ये K की वैल्यू ले रहे हैं 20 और 21. ओके, K की वैल्यू इन जनरल हम 21 ले रहे हैं, तो 21 plus 1 हो गया तुम्हारा 22. अब ये जो 22 है हमें इसको A into B के फॉर्म में लिखना है. तो ये जो 22 है ये इसकी एक पॉसिबिलिटी 11 into 2 हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी 2 into 11 हो सकती है. मतलब A की वैल्यू 11 है, तब B की वैल्यू 2 है, उसके बाद A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 11 है. ओके, तो ये जो नंबर है ये A और B, इसकी वैल्यू पर हमें कमेंट करनी है. तो ये जो भी वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, जितनी भी कॉम्बिनेशंस ये आएंगे, तो ये 1 से ग्रेटर ही होगा. Isn't it? 1 से ग्रेटर होगा. यस मैम. और ये Yes, जो ma'am. K plus 1 है, जो हमारा 22 है, इससे स्मॉल ही होगा. ऑलवेज. यस मैम. वैसे ही B की वैल्यू भी वैसी होगी, 1 से ग्रेटर और K plus 1 से स्मॉल, जो भी आएगी वैल्यू. Is it possible that A is taking value 25 or B No. is taking 30? No, never. नो. Okay, so ये हमारी कमेंट है कि where A and B are integers such that 1 is less than A comma B less than K plus 1. Okay. Now, again observe this A. A की वैल्यू 1 से ग्रेटर और K plus 1 से स्मॉल है.
मतलब A can take values from 2k. B also can take values from 2k. Agree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। Yes, ma'am. ये हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। इसे हमने लिखा है कि कोई भी नंबर अगर 2 और k के बीच में है, वो नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा जाता है। Isn't it? So now we can write it like this. By the inductive hypothesis or induction hypothesis, A can be written as a product of primes. For example, P1, P2 up to say Pi. कोई भी प्राइम्स हो सकते हैं। And also B can be written as a product of primes. कोई भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि Q1, Q2, Qj. So A can be written as P1, P2, Pi and B can be written as Q1, Q2, Qj. और ये सारे प्राइम्स हैं क्योंकि ये हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। अगर ये हमने ऐसे लिखा, so then k plus 1 can be written as हमने A into B ऐसे लिखा था उसको, k plus 1 को, ये यहाँ पर। अभी ये के जगह पर क्या आएगा? P1, P2, Pi। Pi. B के जगह पर क्या आएगा? Q1, Q2, Q2. Qj। तो इसका मतलब ये सारा जो है प्रोडक्ट, ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है। Yes, ma'am. इसका क्या मतलब है कि k plus 1 कंपोजिट है, फिर भी वो ऐसे लिखा जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एंड हेंस फॉर बोथ केसेस we have seen that we can write k plus 1 as a product of primes, which proves the proposition. So we will end up with this statement. In both cases, k plus 1 can be written as a product of primes. Okay? Do you understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can take screenshot of this slide and complete it whenever you will get time.
and we will go for next example. See the example now. Consider a game in which two players take turns removing any positive number of matches they want from one of two piles of matches. The player who removes the last match wins the game. Show that if the two piles contain the same number of matches initially, the second player can always guarantee a win. एक एग्जांपल है जिसमें गेम डिस्क्राइब किया गया। दो मैचेस रखे हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ पाइल्स रखी है। दो प्लेयर्स हैं। पहले एक प्लेयर मैचेस उठाएगा या पाइल्स उठाएगा, उसके बाद दूसरा उठाएगा। अभी पहले पर डिपेंड है वो कितना भी उठाए, सेकंड कितना भी उठाए और कितने भी रन्स हो उनके, ऑलवेज सेकंड प्लेयर कैन विन। ओके, ये ऐसा गेम है। यहाँ पर डिस्क्राइब किया है फिर से। देयर आर टू पाइल्स ऑफ मैचेस, टू प्लेयर टेक टर्न्स रिमूविंग एनी पॉजिटिव नंबर ऑफ मैचेस they want from one of these two piles. The player who removes the last match wins the game. Game कौन win करता है? जो last match उठाएगा। Show that if two piles contain the same number of matches initially, the second player always guarantees a win. अभी आप इस क्लेम पर भरोसा करते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि ये जो प्रपोजिशन है, जो क्लेम है, ये राइट है? बोलो। आपको गेम समझ में आया है? आप बिलीव करते हो क्या कि ऑलवेज सेकंड प्लेयर विल विन? गेम खेलकर देखना है? नो मैम। गेम नहीं खेळायचा आहे कि याच्यावर ह्या Yes, क्लेम ma'am. भरोसा नहीं है? समजत नाही मॅम. समजत नाही, बर ठीक आहे। आपण काय करू? दोन आठपेटे घेऊ। ओके, लेट्स टेक टू मैचेस। दो मैच बॉक्स लेते हैं। इसमें 20 मैचेस है और इसमें भी 20 है। ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है, दोनों में 20 है। ये है हमारा मैच बॉक्स ए और ये है मैच बॉक्स बी। अभी आप में से दो प्लेयर्स के नाम बताओ मुझे, जो ए बनेगा और दूसरा बी लेगा। बताओ। कोई भी दो स्टूडेंट जिसको खेलना है गेम। नम्रता। नम्रता, कुठला घेते तू, ए की बी? ए। ओके, Namrata is player 1 and who will be player 2?
Don't worry. चेतना. भाविन. चेतना घेऊ की भाविन घेऊ? चेतना. Okay, चेतना. Okay. Namrata, you Yes, pick ma'am. up. You pick up the matches from A now. In the first run, कितनी मैचेस उठाना चाहोगी यहाँ से? 2. 2. नम्रता ने 2 उठाए तो यहाँ पर कितने बाकी है अभी? 18. 18. गेम एंड कैसे होने वाला है? जब दोनों मैच में से मैचेस खत्म होंगी, मैच बॉक्स में से मैच खत्म होंगी और जो लास्ट प्लेयर उठाएगा वो जीतेगा. ठीक है. नम्रता ने 2 उठाए, 18 उसके मैच बॉक्स में 18 मैच फाइल्स रिमेनिंग है. चेतना, यू पिकअप नाउ. 4, ma'am. 4. Chetna picked 4, so 16 is remaining. Namrata, your turn now. 8. 8. Now 10 remaining here. Chetna, your turn. 7. 7. So 9 remaining. Namrata, you pick 6. 6. So 4 remaining. Chetna, 9, ma'am. Chetna, 9, ma'am. चलते हैं. हरायचंय का तुला? Yes, ma'am. म्हणजे हा क्लेम तुला रॉंग ठरवायचा आहे. गेम असा सोडून द्यायचा असतो ना मध्येच. जिंकण्यासाठी खेळतो की हरण्यासाठी खेळतो? जिंकण्यासाठी. मग तुझं 9 उचलून घेतल्या तर तुझी आगपेटी रिकामी होऊन जाईल आणि मग ती उचलेल तर ती जिंकेल ना. ठीक आहे मॅम. म्हणजे काय? 9 उचलायचे तुला? 3 उचलायचे आहे मॅम. 3 उचलायचे आहे. ओके. चेतनाने 3 उचलल्या, 6 राहिल्या. ओके. नम्रता 2. 2. चेतना 3. 3 राहिल्या. नम्रता 1. 1. चेतना 2. चेतनाने 2 उचलल्या, 1 राहिली. नम्रता मॅम आता 1च राहिली ना. बर, जाऊ दे. 0. चेतना 1. एकच तुमच्याकडे ऑप्शन 1. कोण जिंकला? काय झालं? काय? ड्रॉ झाली मॅडम. ड्रॉ थोडंच होणार आहे. चेतना. पेपरची लिहा ना. ड्रॉ नाही चेतना. चेतना. मॅम दोघांकडे 1-1 मॅच होत्या ना. पण गेम लास्टला चेतनाने the player who removes the last match wins the game. The player who removes the last match wins the game. Okay. तर आता नम्रता तू 4, 6, 8 असं काहीतरी ऑप्शन घेतले होते. जर तू बदलले इथे. हो मॅम कळलं. कळलं. ओके. नम्रताला कळलं. What about others? समजलं मॅम. Okay. So this means if this kind of game is this, that 2 players take turns removing any positive number of matches
they want from one of two piles. The player who removes the last match wins the game. And show that if two piles contain the same number of matches initially, the second player always guarantees a win. First player ने काही करून घ्या. हे करू ते करू इतके उचलू तितके उचलू पॉझिटिव्ह नंबर उचलायचा आहे तरी सुद्धा शेवटी कोण जिंकणार? The second player जिंकणार. To show it. In the next lecture we will show this. Okay? So you remember this. In tomorrow's lecture, we will write its proof. Okay? Okay, ma'am. You try to solve this. Okay, ma'am. Write the proof as an homework. Okay. So you may have lecture now. Yes, ma'am. So I want to take attendance, but I think next teacher may join the meet. You send your attendance on our WhatsApp group. Let me see. 47 means 46 students are there. Praniket. ये कौन है? Aspire. अभय. Yes, ma'am. कौन है? सूरज है का? ठीक है. Yes. अनिकेत 4 ही अनिकेत आहेत. अर्सलान, अस्मिता, भाग्यश्री दोघी भाग्यश्री आहेत. बुद्धभूषण आहे. चोपडे पूजा, डिंपल, दिव्यानी, हर्षदा, जान्हवी, जया, खान, मुसरत आणि भाविन आणि हा कोण आहे? वैसा 7. मॅडम वैशाली पाटील. अच्छा ठीक आहे. इतकेच जण आहेत ना? मॅम आदित्य पाटील. हा? पण माझ्या याच्यात तर काही दिसत नाही. ठीक आहे. 39 आहेत म्हणजे 46 स्टुडंट्स आहेत. तुम्ही तुमचा अटेंडन्स आपल्या ग्रुपवर पाठवून द्या. मॅम 49 आहेत. हा? वहाँ पे